This is Ishi Classes. Today we are going to discuss chapter 1 of class 9, that is number system. In our previous video of number system, what we have learned? We have learnt about rational number, in which we have seen that these are the numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. And we have also studied about natural numbers, whole numbers, integers, fractions, and saw that all these numbers can be expressed in the form of P by Q, and P and Q both were integers too, and Q is not equal to 0. So all these numbers are rational numbers. But before proceeding to our next topic, I have a question for you all. My question is there any number exists which cannot be in the form of P by Q? Are there any number that cannot be expressed in the form of P by Q and where P and Q are integers? Are there any numbers? The answer is yes. There are numbers that cannot be expressed in the form of P by Q. Let's see what are those numbers. So, to see what are those numbers, let's see some of the square roots of some numbers. If I ask you what is the square root of 1, what you will say? This is 1. If I ask you what is the square root of 4, you will say 2. If I ask you what is the square root of 9, you will say 3. What is the square root of 16? You will say 4. What is the square root of 81? You will say 9. The square root of all these numbers have a fixed value, that is here 1, and this can be written as 1 by 1 because we know that if we divide any number by 1, there will be no change in that number. We get the number itself. So this is in the form of P by Q. So I can say that root 1 is a rational number. Now come to root 4. The value of root 4 is 2, and 2 can be written as 2 by 1. And this is in the form of P by Q. So we can say that root 4 is a rational number. Now come to root 9. The value of root 9 is 3, and this can be written as 3 by 1, and this is in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So likewise root 9 is also a rational number. Here root 16 is also a rational number because the value of root 16 is 4, and this can be written in the form of 4 by 1. Likewise ऐसे बहुत से numbers हैं जिनके root की एक fixed value है और जो fraction के form में लिखे जा सकते हैं. But if I ask you what is the value of root 2, does root 2 has any exact value? What you will say? Root 2 does not have an exact value. What is the value of root 2? The value of root 2 is 1.414213562237, and the number goes on like this. The digits after decimal doesn't terminate. वो खत्म नहीं होते और वो आगे जाते ही रहते हैं. तो रूट 2 की हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलती है. हम उसको अप्रॉक्स में क्या ले लेते हैं? 1.414, बिकॉज इस नंबर का कोई एंड नहीं है, ना ही जो इस डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं इनमें कोई पैटर्न है. तो हम नहीं बता सकते कि इस नंबर को पाने के लिए हमने किस नंबर को किससे डिवाइड किया होगा. नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है. जब हम यही नहीं बता सकते कि हमने किस नंबर को किससे डिवाइड किया है ये वैल्यू लाने के लिए, तो क्या हम इस नंबर को P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं. रूट 2 को हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है. लाइकवाइज अगर मैं रूट 3 की बात करूं तो रूट 3 की भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. आगे मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियोस में कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज होती क्या है. लाइकवाइज
अगर मैं √4 देखूं तो क्या √4 की फिक्स वैल्यू होती है? यस, √4 का हमें पता है फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 2, एंड 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q व्हेन वी डिवाइडेड बाय 1. अब इसके आगे आए तो √5. डज √5 हैज एनी परफेक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू? नो. बट एंड √6 लाइकवाइज ऐसे हम आगे जाते रहते हैं, तो जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं उनके रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. ऐसे नंबर्स को √2, √3, √5, √6, √11, √7 ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. अब ये इर्रेशनल नंबर डिस्कवर किसने किया ये भी देख लेते हैं, और कैसे किया. पाइथागोरस का नाम तो आप सबने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम. ही इज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन. पाइथागोरस इज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन. अब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्हें हमने कहा या उन्हें कहा जाता था पाइथागोरियंस. ये क्या करते थे? इनकी टीचिंग्स को और इन सब चीजों को फॉलो करते थे, मैथ्स में जो भी डिस्कवरी करते थे. तो पाइथागोरियंस में एक था हेपिकस. अब हेपिकस के दिमाग में एक बात आई थी कि अगर √1 की वैल्यू 1 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो √2 कहाँ जाएगा? उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, है ना. तो उसने सोचा इस √2 का क्या होगा. उसने उस टाइम पे सिर्फ √2 सोचा था. फिर उसने सोचा कि इस √2 का क्या करें. अब ये तो p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है. क्या करा जाए इसका. तो ऐसे नंबर को उसने बोला कि जब p/q फॉर्म वाले नंबर को रैशनल बोलते हैं, तो ये नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिसमें p और q इंटीजर ही नहीं होंगे अगर लिखें भी, तो ऐसे नंबर्स को उसने बोला दीज आर इर्रेशनल नंबर्स. तो हेपिकस ने डिस्कवर किया इर्रेशनल नंबर्स को. अब आप सबके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी और मुझे पता है, मेरे भी आती थी जब मैंने इसे पढ़ा था, तो कि √2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ √2/1, क्योंकि आपने ही बताया है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, वो p/q के फॉर्म में आ जाता है और नंबर में कोई चेंज भी नहीं आता. बट रैशनल नंबर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर ये p/q फॉर्म में है तो p और q को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर्स. क्या ये √2 इंटीजर है? क्या इंटीजर्स के नंबर लाइन पे या इंटीजर्स में आपने √2 पढ़ा है? नहीं. √2 इज नॉट एन इंटीजर. तो क्या हम इसे इंटीजर रैशनल नंबर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर की जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि p और q को इंटीजर होना चाहिए, वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है. इसी तरह इसके आगे डिस्कवर हुआ √3, फिर आया √5, फिर आया √7, और भी बहुत सारे नंबर्स आए थे किसके लिए, इर्रेशनल नंबर्स में. जैसे हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर में सारे नंबर्स आ गए और इन्फिनिटी तक नंबर्स चले गए, इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं, काउंटलेस होते हैं. अब हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर. So irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब ध्यान देखना, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, विच कैन नॉट बी रिटन. जो नंबर्स p और q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और इसमें p और q इंटीजर भी नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी अगर लिखे भी जा रहे हैं, तो वो नंबर्स क्या हो गए, हमारे इर्रेशनल नंबर्स. और हमने इसके एग्जांपल्स क्या क्या देखे, √2, √3, √5, √7, √11, √47, √48,
जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं थे उनके सारे के रूट हमारे क्या हो गए, इररेशनल नंबर्स। और भी बहुत सारे हैं, we'll discuss it later। अब हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में और इररेशनल नंबर के बारे में, पर एक बहुत कॉमन सी चीज है जो आप 6th में भी पढ़े हो, 7th में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो, और वो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगी। अगर मैं लिखती हूँ इज पाई अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दैट पाई इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज वी ऑल नो दैट पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7, जो कि p/q के फॉर्म में है, और इधर p और q इंटीजर भी है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। बट पाई जो हमारा है वो एक इररेशनल नंबर है। अब आप सोच रहे होगे तो p/q के फॉर्म में भी है और रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, फिर भी क्यों ये इररेशनल है? क्योंकि ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है, पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, इससे हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, लगभग इतना मानते हैं पाई को। पाई की जो हम दूसरी वैल्यू लेते हैं दैट इज 3.14, दिस इज ऑल्सो नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे नंबर आते हैं 7, 3, 2, और इसके आगे डेसिमल के आगे पाई के डिजिट्स टर्मिनेट होते ही नहीं है, वो आगे जाते रहते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे √2 की वैल्यू फिक्स नहीं थी, वैसे ही पाई की वैल्यू अभी तक किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया। बहुत सारे रिसर्चेस हुए उस पे, लेकिन पाई की अभी कोई फिक्स वैल्यू हमको नहीं मिली है। बस हमें इतना पता है कि हम उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 मान लेते हैं, डेसिमल के आगे अभी वो टर्मिनेट नहीं होता है और वो एंडलेस जाता रहता है। तो ये याद रखना है दैट पाई इज एन इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को और अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ अब आपको ये भी पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, जब इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ रख देते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर में होल नंबर को रखा था, नेचुरल नंबर को रखा था, इंटीजर को रखा था, फ्रैक्शन को रखा था, डेसिमल को रखा था, तो हमने इन सबको क्या बोल दिया था कि ये सारे मिला के क्या बनाते हैं, एक रैशनल नंबर बनाते हैं, है ना। लाइकवाइज जब हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर्स। Collection of rational number and irrational number are real numbers and we denote it with R। जहां भी आपको नंबर्स में R लिखा हुआ दिखे, आपको तुरंत समझ जाना है क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो these are those numbers which are located on number लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे वो हर नंबर जो नंबर लाइन पे लोकेट किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर्स हमको पता है कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, होल नंबर्स भी पता है कैसे करते हैं, हम अपनी स्केल देख लें, 0 से शुरू होता है, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर हमें इंटीजर्स भी हमने पढ़ लिया कि 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन भी हमने देख लिया कि इन्हीं दो होल नंबर्स के बीच में मिलते हैं हमें, डेसिमल्स भी हमें पता है, और ये सारे मिला के रैशनल नंबर बनाते हैं। तो रैशनल नंबर भी हमें पता है कि कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। बट ये इररेशनल नंबर को कैसे लोकेट किया जाए, इसकी वैल्यू तो कुछ ऐसी है, √2, √3, √5, √7, इनकी तो कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है। हाउ वी लोकेट इट ऑन नंबर लाइन? सो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी इररेशनल नंबर को लोकेट करना हो नंबर लाइन पे तो हम
कैसे करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ वी लोकेट irrational numbers on number line. Of irrational numbers on number line, we will discuss it in our next video. Today what we have learned about irrational number, about the collection of rational and irrational numbers, what we call it real numbers, and the most important is pi a rational or irrational number, and what we get that pi is an irrational number and 22/7 and 3.14 is an approximate value of pi. I hope आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो do share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon so that आपको notifications मिलने में बिल्कुल भी लेट ना हो। और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा and ask them to subscribe this channel. Till then, bye bye, and in the next video we will discuss a very important topic.